हाँ जी, किवें हो जी ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਨਾ ਸੱਟਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਤੇ ਕਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਆਹ ਕਰਿਓ ਕਵਰ, ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਵਰ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਡਾਂਡੇ ਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਮਿਟ ਔਨ ਪੇਪਰ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਵਰ 'ਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਬਟ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕੁ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, 12 ਮਿੰਟ ਲੰਬੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। राम राम भाई सारे ने। तो सब ने पता होगा किस मुद्दे पर बात कराएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि कम समय में अपनी बात पूरी रख सकूँ आपका आगे। पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वोमिट ऑन पेपर गाने की वो जिस एक लाइन थी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करा जा रहा है। ਓਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ, ਹਨਾ। सच्ची बैंक लूटदा भगवा रंग जे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरिया हुंदा, राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटदा। ਤੇ ਵੋਮਿਟ ਔਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। समझदार सूझवान पढ़े लिखे लोगों को पता है कि भाई सोसाइटी के किन इश्यूज पर हमने बात करी है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਸੀ, 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ। लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो उसको समझना ही नहीं चाहते भाई। ओके, अब पता नहीं शायद उनकी रोजी रोटी ही इन सब ढकोसलियां तो चल दी हो, या फिर वो समाज में टिके ही आम जनता थी पागल बना के रहना चाहते हो। तो हमें तो नहीं समझ आया भाई। 2021 में शायद मैंने आखिरी गाना कराया था ट्रू इन्हीं सोसाइटी इश्यूज पर। आज 2025 आ गई, साल गुजर गए 4। इसीलिए मैं इन मुद्दों की नहीं छेड़ता भाई, क्योंकि ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਛੇੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਯੂ ਡਿਡ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਬ్రో। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ। ਬਟ जिस तरीके से हम अपनी बात रखेंगे ना, ये समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। ओके, चाहते तो ये थे कि म्यूजिक का हालत है, इनके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो अच्छी और बुरी चीजें हो रही है वो यूथ और नई नस्ल का आकर रखेंगे, फिर कहीं जाके डोस्टोव्स्की, कार्ल मार्क्स, कृष्णमूर्ति तक इनती लेके जावांगे। लेकिन अब जो हालात देखने लगा, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बड़े जो अपने सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, जब वो पॉडकास्टा के अंदर बैठे हैं और जब उनसे कोई जर्नलिस्ट हो गया या कोई भी पॉडकास्ट वाला सवाल रखा है कब कि भाई हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी आर्टिस्टों के बारे में क्या कहना है, और जब वे अपना डायलॉग डिलीवर करें का क्या हो रहा है, गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, बदमाशी चल रही है, तो लगा था रियलाइज होया करता कि यार नहीं, शायद साल में 1 या 2 गाने हमने अपने आवाम, अपने लोगों के, अपनी सोसाइटी के हित में ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ, ਸੌਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਢਾਂਡੇ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾਦਾ ਦੀ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੂਮ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੀਤ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। जरूर देनी चाहिए ताकि ये अवेयर रहे, कल को अपने सवाल उठा सके, इनमें थोड़ा बहुत जिंदा रहे जमीर। लेकिन हमने लगे कि सबसे बड़ी गलत फहमी थी वो हमारी, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। अगर देसी भाषा में मैं तो हमने समझाऊं, मेरे गांव का किस्सा है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है।
तारा शायद कई जगह पे खेड़ा कहते हैं, हमारा खाड़ा कहते हैं भाई। तो उस पर जो जो बाबा जी बैठे हुए थे वो चोला छोड़ गए थे, वो गुजर गए थे। उनके बाद में किसी और को उस गद्दी पे बिठाया गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा, गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं 6वीं क्लास की लड़कियां थी, वो टीचर्स का आगे आके रोने लगी। अब एजुकेशन का रोल देखो कितना बड़ा है, पढ़े लिखे बच्चे भी समझदार किस तरीके तो हैं। तो जब उन टीचर्स थी बताया कि हम जब जावा ना दोकमान या पूजा करने जाओ, तो बोले वो हमने बिठा और हमारे गलत गलत हरकत करे। अवेयरनेस, क्योंकि सेम टाइम पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी थी कि आपको गांव गांव जाना है और बच्चों को स्कूलों के अंदर गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना है। तो एजुकेशन में अपना रोल प्ले करा। उन्हें लगा कि अगर हम हमारे माँ बाप को बताओ, क्योंकि कई बार क्या हो गए जहन के ऊपर मजहब और धर्म के ऐसे गिलाफ चढ़े हुए कि आपको सही और गलत का फैसला ही नहीं करना। बहुत सही गल, रोंगटे खड़े करने वाली गल है भाई, रोंगटे खड़े करने वाली गल है। तो बच्चों को भी वही लगा कि हम घर पे बताने की बजाय हमने टीचर्स को बताएं। और वो जो डेली बेस में प्रशासन और पुलिस वाले आने लग रहे थे, तो उनकी वजह से उनका हौसला और डबल था कि वहां बताओगे तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए। और गांव के बुजुर्ग अच्छे थे, समझदार थे, तो जब प्रशासन टीचर्स और सब ने मिलके उस चीज का पता करा, तो यह हरकत मेरे गांव में 10 से 12 बच्चियां गल हो रही थी, 10 से 12 लड़कियां गल। तो जो लाइन मैंने लिखी ना, कूटदा, मेरे गांव के लोगों ने उसी तरीके से प्रशासन का हवाला कराया था उसकी। नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। तो जो कुछ मैंने देखा है भाई वही लोगों के सामने रखा है मैंने। वो शायद लुधियानवी साहब का शेर है कि जो कुछ भी तजर्बा दो हवादस की शक्ल में मुझको मिला है, वही जमाने को वापस लौटा रहा हूं मैं। इसमें मैंने नया के एड ऑन कर दिया। मेरे गांव से 3 गांव छोड़ के है भाई, बेचारी का घरवाला एक्सीडेंट में मर गया, एक लौती बेटी थी, पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों के बड़े जमींदारा का कासन मांस दी के दिहाड़ी कर दी की, चंद पैसे जोड़े थे, पैर के अपना भगवान रंग घर आके बोला हमारी रोटी दिए। जब रोटी पकड़ने लगी आख्या मिर्च मार के और बांध के सब कुछ लूट के चले गए। के वजह भाई उसका इस समय इन मुद्दों पे बात कर रहा हूं मैं, जो तरीके से जिस तरीके से तारा का वो चीज पेश करी गई है उन पर बात कौन करता भाई मैं। और दुख हो जब मेरे अपने लोग इन चीजों पर लड़न लग रहे हैं आपस में। हद है यार तुम लोगों की, तुम तारा समझ में को नहीं आने लग रही कि एक आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों का वालद है। खैर फिर भी ये मेरे अपने लोग हैं, इनका दिल रखने खातर लालच है भाई इस चीज को, मैटर को बंद करने के लिए। हम वो जिस लाइन पर आपत्ति थी ना मेरे अपने लोगों की, हम उसकी चेंज करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन विचार वही रहने हैं अभी भी। आप सुनोगे थोड़े बेहतरीन तरीके तो आप दिए गए हैं। अक्सर जिन चीजों पर सोसाइटी या जिन भी मेरे अपने भाइयों की दिक्कत हुई थी ना कि ना यह बात गलत है, ठीक है भाई, आप अगर उसको नहीं समझ पाए मैंने वो वापिस ले। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚੋ ਕਿਸ ਵੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ ਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਆ ਦੇਖਿਓ। वो चीज रख भगवे और बाबा ने पिटूंगा मैं ना, तू पीट तो नहीं सकता, लेकिन अब पिटेगा तू। 6 महीने लग जो, साल लग जो, 2 महीने लग जो, अर्जे भाई मेरे जिसे का फंस गया तो पक्का पिटेगा। मेरे पास आपको और बेहतरीन तरीके से वो चीज सामने रख दी। अब देखूंगा कितने लोग मेरे हक में बात करना होंगे। आपको उस गोली है ना जो उस पर थोड़ी सी चाशनी लगा के दे दिया, वो निकलने में आसानी हो जाओगी आपको। 24 से 48 घंटे में, आई थिंक वो फाइल आज सबमिट करी हमने, 24 से 48 घंटे में आप लोगों के सामने होगी वो। तो सुनना भाई, आपको शायद अब सुनने में बहुत अच्छी लगे वह चीज। वो मंटो का कहा हुआ है कि सच को चाहे शक्कर की चाशनी में डुबो के पेश कर दो, सच सच ही रहेगा दोस्तों। हाँ, मगर आपको समझाया गया जिन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, आपको जिस तरीके से पेश कर दी गई कुछ लोगों का वालत है, शायद उसकी वजह से आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए कि मैं तुम लोगों को कहना क्या चाहता हूं। अब जब आएगा नए तरीके से 2-1 दिन में, आपको अब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं तुम लोगों की। तुम मेरे अपने लोग हो भाई, और मेरे को क्या पड़ी है यार, क्या पड़ी है मेरी थी कि मैं तारे गला माथा मारूं? नो, कमर्शियल म्यूजिक कर रहा हूं पिछले 4 सालों से, लेकिन चिंता थी, फिक्र थी मेरे इन लोगों की, तरस आओ इन लोगों में। मैंने जब
डिग्रियां उठा के पीएचडी होल्डर चपरासी की लाइन आन लगे हैं। दुख हुआ है मैंने जब अनपढ़ता और इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन लोगों में अपना भगवान तलाश कर ले जो लोगों के बाद में बोल बुल दिया आंडा है। ਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਆ। ਤੇ ਬਈ ਬਾਹਰਲੀ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਟੂ ਹਾਰਡ ਬ్రో, ਟੂ ਹਾਰਡ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂੰਗਾ, ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ। ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਸਹੀ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੇ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਧਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਪੀਚਲੈਸ ਆ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇ 'ਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾँ-बाप ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ किताबां नहीं पढ़ियां तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं वो। मन तरस आओ इन चीजों पे। जब जाके मैंने बातें उठाई इन मुद्दों पे, उस गाने के अंदर 3.5 मिनट का गाना, उसमें 36 मुद्दे और उठा रखे हैं। किसी एक भी जिन लोगों ने इसकी 36 मुद्दे ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈ। खिलाफत करी है, किसी भी एक इंसान ने आके उनमें से किसी भी और बात के ऊपर ये नहीं कहा कि तूने बाकी सब बातें बहुत सही कह रखी है। सारी बातें सही कह रखी है भाई, तू गजब है आदमी, तू दिल से प्यार है मेरे डांडे भाई तेरे को, तू बहुत बढ़िया जा रहा है मेरे भाई। बट ये चीजें आती रहती हैं, मतलब चीजें दबोने के लिए फिरते हो, पर ठीक है यार भाई। एक मुद्दा ये गलत है तो उनकी नजरों में कोई नहीं करी। They were just pointing out only one thing. Why? Because they want to keep themselves as a religious hero in this society, जो कि भाई वो नहीं है। ये लोग सबको पता है कि क्या पाखंड हो रहा है यार अपने समाज के अंदर। खैर आपका सामने आ जाओगी भाई, 2-1 दिन में सुन लेना भाई उसको। और इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं भाई, यूथ से इतना ही कहना है, गेट एजुकेशन, अपनी क्राफ्ट पर, अपनी स्किल्स पर काम करो एंड देन फाइंड अ गुड लिविंग भाई अपने लिए। यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब के लीडर्स हैं जो रहनुमा बने बैठे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी यंग एज उन लोगों के पीछे लग के बर्बाद ना करियो। जितने भी मेरे सराउंडिंग है, जिनका मेरी भाषा समझ में आवा है, सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान का तो ठेका मैं कौन नहीं उठा सकता, लेकिन जो लोग शायद मैंने समझ पावा उनकी इतना ही कहूंगा भाई, जाट के घर बैठ के कोई लीडर आपके बाप के गलत, आपके खुद के माँ-बाप के साथ भी बैठ के कह रहे हैं बामण की गाली दे दें, तो अपने बाप के खिलाफ खड़े होकर आप आवाज उठाइए उसके कि नहीं ये गलत है। सो ट्रू, मतलब ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਪ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਡਾਂਡੇ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ स्पीचलेस हाँ। ब्राह्मण का घर बैठ के जाट न गाड़ दे, कोई गुज्जर का बैठ के राजपूत न गलत बोले, कोई राजपूत का बैठ के सैनी नहीं बोले। कभी भी इन लोगों के पीछे मत लगना, क्योंकि मैं रोज रोज तो भाई तारे गलत को नहीं मारूंगा था, पता लग गया मैंने यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन नेवर एवर वेस्ट योर एनर्जी फॉर रिलीजियस एंड कास्टिज्म फाइट्स। यही कहना मेरा यूथ थी। आप बचा जाओगे अपनी एनर्जी को, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला फ्यूचर है जो हरियाणा का या पंजाब का या इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, इन लोगों का बहुत बुरा होने वाला भाई। आप लोग नहीं देख पाते, एज एन आर्टिस्ट मैं शायद इन निगाह तो देख पा रहा हूँ, मैं समझ पाता हूँ चीजें थी। तो भाई कभी भी इन चीजों के ऊपर फाइट मत करो एक दूसरे के गला। ये सोसाइटी सबके लिए बनी है, सबको सेम अधिकार है उधर रहने का। वेरी गुड डांडिया, वेरी गुड उस्ताद, सरा लाया तू। और अगर भाई मैंने एक चीज और देखी, कई लोगों का ये है कि भलाई तो इसका
सॉन्ग बंद हो गया, बॉयकॉट कर दो, इसकी दुकान बंद होगी, न्यू कर दे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਨੌਕ पे। न्यू कर देंगे भाई, जुत्ती की नोक पर आप। कसम लगे भाई, मैं नहीं सोचा भाई इतना कहूंगा। दिस इज रियली गुड मैन। मैं इस फेम और स्टारडम न इस शोहरत ने ना मना काल परवाह थी, ना मना आजा, ना मैं आने वाला टाइम में करूं। जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो इन चीज़ों की टेंशन। This is a man bro, this is a man, so good man। ਤੇ ਬਾਈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਓ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਵੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਯਾਰ क्यों? जीने की इच्छाएं मर रही हमारी, कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। खुदकुशी हराम है, इसलिए वक्त पहले बन जा सकते, अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भाई यह दुनिया। जो हमने एहसास हुआ है होश संभालने के बाद कि हमारे मिजाज के लोग नहीं है भाई इस इर्द गिर्द में, लगा है कि हम फेंक दिए गए हैं इस जगह पे सजा काटने के लिए। ये फीलिंग्स है, थॉट्स है हमारे अपने। अगर किसी थी इस बात का वहम हो और भाई उस आदमी को धमकी दी हो ये जेल हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो, जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, और 2-3 मनस मारनी थी, बदमाश कौन मानते अगर किसी का वहम हो तो। और रही बात हवालात और जेड़ा की, बहुत पुरानी यारी मेरी उन कमरे आता है, और इस उम्र में इस जगह पर आके सिर्फ एक फिलोसफर, एक शायर की किताब और एक कॉपी पेन चाहिए मैंने, और कुछ कौन चाहता। इस वहम में ना जियो कि भाई मैं तस्लीम में एक्सेप्ट करे बैठा हूं अपने अंदर। जिस दिन मैं इस लाइन के अंदर आया था कि आज मैं हूं, मेरा वक्त आया है, कल मेरी जगह किसी और ने ले लेनी है, उसके बाद उसकी जगह पे किसी और ने आ जाना। सिर्फ इंसान बदलते हैं, फेम और शोहरत कभी नहीं बदलती, वो वहीं स्टेबल रहती है। मेरे से पहले यहाँ कोई और थे, आज मैं हूं, मेरे बाद कोई किसी और। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਆ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਵਟਐਵਰ। सो ही गल भाई कह रहे हैं आ जाना यहाँ पे। टाइम होना चाहिए। ये मैं एक्सेप्ट करके आया था। अगर किसी को ये वहम हो कि मनाड़ा 15-20-30 साल और रहना इसमें नहीं, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਹੂਗਾ, ਲੰਬਾ ਰਹੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਲ ਗਨਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਰਹੂਗਾ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਚੱਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਡਾਂਡੇ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ ਯਾਰ। ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਿਪ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। भाई मैं मेरे हिस्से का म्यूजिक डिलीवर करके, मेरी आर्ट डिलीवर करके साइड में हो जाना चाहूँ। मैं चाहता हूँ नहीं सांग का मैं इतने वक्त तक पड़ा रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के 60-70 साल भी अगर लिखे होंगे कुदरत ने, वो उन पॉलिटिशियंस की तरह गवा के चला जाऊं कि जिनने पूरी जिंदगी ही पॉलिटिक्स में गुजार दी, वो अपने हिस्से की जिंदगी नहीं जी पाए। सिर्फ जोड़ तोड़ संगठन गठबंधन बनाने में जिस तरीके से उम्र गुजर जाए उनकी, मैं कभी भी नहीं जीना चाहता मेरी जिंदगी को इस तरीके से। सो अपने जहन में रखियो भाई इस बात की, अगर किस जो नेगेटिव सोचे हैं, जिन्हें लगे कि मेरे पास से कुछ ले जाओगे, मेरे पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, भाई मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, नथिंग। bro ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਣ ਹੈ ਨਾ bro, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੋ ਕੀ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੋਣ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। You can't see left, right, either on the back. So just go straight, that's it. When I started from zero.
और मैंने जो पा लिया है मेरी लाइफ में, अगर मैं गिरूं भी गाना है तो कितनी नीचे गिरूं जी, जहां से हम उठ के आए हैं। रेल गिली का बता देर तोड़ दे अंडा कर दे हमें, बाटा की चप्पल आती टूटोड़ी, मोचिया में टांगे लुआ के पैरिया Fuck bro. जहां बैठे हैं ना। ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ, ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਡਿੱਟੋ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਈ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ। कुदरत ने उसमें बहुत कुछ दे दिया मारती, उसमें खुश हाँ हमें जितना मिल लिया हमने, ज्यादा की चाहना बनी तो यो वह मार काट दियो भाई इस आर्टिस्ट के लिए। तो सब में राम राम है भाई, अपना ध्यान रखो और मौज लो। ਓਏ ਡਾਂਡਿਆ ਮੌਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਤੀ, ਇੰਨੀ ਐਂਡ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹਾਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅ ਫੱਕ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆ 12 ਮਿੰਟ 38 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮੂਵੀ ਆ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਹਰੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਡਾਂਡਾ ਬਾਈ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਬਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਰੋ ਡਾਂਡੇ ਵੀਰੇ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ, ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਨੌਕ ਪੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ। I love it bro, I love it man। ਥੈਂਕਸ ਡਾਂਡੇ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 12 ਮਿੰਟ 38 ਸਕਿੰਟ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ 19 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੇਤੇ ਰਹੂਗੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮੇਰੇ 12:38 ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, 12 ਮਿੰਟ 38 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 19 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ।